हर यूनिवर्सिटी की अपनी बेसिकली रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल रही होती हैं और हमारा एक्सपोजर भी बहुत क्लिनिक्स में। डीपीडी आप चूज करो, लाजमी करो, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि Hello everyone, Assalamu alaikum, and welcome back to the another episode of the Pre-Med podcast. This is Zoya Ahmed, a first-year medical student at Karachi Medical and Dental College and an intern at Medangal Pre-Med. And in this episode, we will be diving deep into the eligibility criteria, the merit requirements, and the admission process, and everything you need to know about the Allied Health Sciences programs. For this purpose, we have got three amazing guests with us. Afeen Adil, a second AIDPT student at Jauddin University, Bisman Sari, a first-year pharmacy student at Hamdard University, and Muskan Ashok, a second-year DPT student at People University of Medical and Health Sciences. Thank you so much for being on board with us. We are so pleased to have you all in this podcast. Before moving forward, I would like the speakers to introduce themselves, starting from Afeen. Afeen, can you please introduce yourself? Assalamu alaikum everyone. I am Afeen Adil, a second year physical therapy student at Jauddin University. Thank you so much, Medangal Pre-Med, for having me here. I'm very happy to be here and I'm very excited to answer all of your questions. Assalamu alaikum everyone, Muskan Ashok this side. I'm a second year physiotherapy student from People's University of Medical and Health Sciences, Nawabshah. Thank you, Zoya Ahmed and Pre-Med Medical for having me. Assalamu alaikum. My name is Bisman Sari and I am a PharmD student from Hamdard University. I am currently doing PharmD first year and I will be graduating in 2029. Thank you. Thank you so much, Afeen, Bisma, and Muskan, for being on board with us. Now that we know a little bit about yourself, I would like to ask the question with all of you that why you choose this specific program in all of the other programs of Allied Health Sciences. Like, बहुत से ऐसे programs हैं जो कि Allied Health Sciences की fields offer करती हैं. So why you chose specifically DPT and pharmacy? Firstly, I would like Afeen, like, what was the reason behind choosing DPT as a bachelor for doing bachelor's, and what was the main reason that she decided to do the DPT? Talking about why did I specifically chose this program, actually I wanted to be a doctor since childhood and specifically DPT क्यों choose किया, because मैं देखती थी कि आप medical doctors के पास जाओ, आप dentist के पास जाओ, so they basically try to heal you with medications. I had always fascinated to heal people without medicines. We physical therapists, we do not provide medicines. Another reason why I chose DPT was my cousin, who was my inspiration. She is also a physical therapist who has graduated from Bakai Medical University. I used to see her how hard she's working, how she engaged with us. हमें लाके बिठाती थी अपने पास, हमें एज अ मॉडल वो यूज करती थी, तो मतलब विच इज़ वेरी रिलैक्सिंग. आजकल हमारे इर्द गिर्द जितना स्ट्रेस, जितना छोटे से छोटे बच्चे को भी देखो ना, गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, तो आई बेसिकली वांटेड टू बस्ट दिस मिथ कि हम फिजिकल थेरेपिस्ट सिर्फ मालिश करते हैं. तो आई वांटेड टू गेट डीपर इनटू इट. And apart from this, basically we physical therapists function, we help the society to function. We help, जैसे एथलेटिक्स हैं, मैंने बहुत दफ़ा देखा, आप क्रिकेट देखते हैं, किसी भी प्लेयर को कुछ हो गया, फटाफट भागती हुई एक टीम आती है, which are actually just sports physios. तो apart from this, मुझे apart from medical exposure, मुझे social exposure का भी बहुत शौक है. So I found it very interesting in a very vast field कि अगर आप इस चीज़ में घुस जाओ तो आपको सिर्फ डॉक्टर नहीं है आपके नाम के साथ, you have a lot of more exposure. I can totally relate with the cervical pain and that pain because it's already November at end of the October और prof season जो है करीब है, तो जिस तरह हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो cervical pain I can totally relate with that. Muskan, can you please let us know that what was the reason that you choose to do DPT? ओके, सो मैंने डीपीडी इसलिए चूज किया क्योंकि मैं पर सही होती हूँ. मतलब हर फील्ड को आप खुद अपने हार्ड वर्क से, अपनी डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से उन फील्ड को आगे बढ़ाते हैं. जैसे कि मेरे फादर का था कि मैं मतलब एक लड़की को पैदा होते हैं सबको कहा जाता है कि वो मेडिकल साइड में जाए. कि मेरी फैमिली में भी कुछ यही सीन था कि
मतलब घर की बड़ी बेटी है तो लास्ट मेडिकल साइड ही जाए, तो ऑब्वियसली एमबीबीएस में नहीं हुआ तो डीपीटी और अलाइड हेल्थ साइंस वाज ऑप्शन, तो मैंने यही I चूज think किया। fathers has an obsession with के medical field में जाना है, because I am doing MBBS सही। and the major reason of doing MBBS is that के मेरे बाबा चाहते थे। When I was like a four years old, तब से मुझे था कि मुझे पता कि डॉक्टर बनना है, मतलब कोई और ऑप्शन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, बस डॉक्टर बनना है। आई थिंक दिस इज सो यू चोज फार्मेसी। व्हाट वाज द रीजन दैट यू डिसाइडेड टू डू द फार्मेसी एंड यू थॉट दैट यू वांट टू बी अ फार्मासिस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल सबको एमबीबीएस करना होता है, सो ये है कि फार्मेसी जो है कोई नहीं करना चाहता, ये एज अ साइड ऑप्शन यूज होता है कि आपने एमबीबीएस में नहीं हुआ तो भैया आ जाओ फार्मेसी में आ जाओ, यहाँ तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो द थिंग इज मैंने इस तरह से नहीं किया था। मुझे बहुत सारी मतलब मुझे ना बहुत जल्दी चीज़ें करनी है इन द मतलब लाइक रिस्पेक्ट ऑफ करियर, कि जो है ना मुझे अपने करियर में जल्दी चीज़ें करनी है। एमबीबीएस का ये है कि वो बहुत लॉन्ग है कि 5 साल उधर देने हैं, 3 साल के बाद वो मिलेगा, फिर 8 साल के बाद जो है ना आप प्रॉपर, उसके बाद भी चीज़ें प्रॉपर नहीं होती आपकी, आपको और अपने साल देने पड़ते हैं। ऑब्वियसली 10 साल आपका एमबीबीएस तकरीबन लेता है। तो फार्मेसी मुझे इसलिए भी करनी थी क्योंकि जो है वहाँ पे ड्रग से डीलिंग होती है, वहाँ पे फिजियोलॉजी होती है। ऑब्वियसली फिजियोलॉजी जो है मतलब आधे आधे डॉक्टर तो आप होते ही हो, तो वहाँ पे इंटरेस्ट भी था मेरा ऑब्वियसली, तो इंटरेस्ट की बेसिस पे जो है ना मैंने इसको परस्यू किया है। और मैं एटलीस्ट ड्रग्स तो दे ही सकती हूँ किसी डॉक्टर की तरह, तो जो है वो इसलिए भी मैंने परस्यू किया है। तो मेरा फार्मेसी करने का मकसद यही था कि मैं शॉर्ट टाइम में जल्दी जल्दी काम करके अपना मतलब ठीक ठाक, मतलब मेरी ना ना मुझे किसी इसमें ज़्यादा वो करना पड़े, और ना ही जो है ना मेरा ज़्यादा टाइम लगे, बस मैं शॉर्ट टाइम पीरियड में बस जल्दी से जल्दी चीज़ें कर लूँ। सो दैट्स इट। I'm hearing it for the first time that someone has their pharmacy as a first option. या But this is so relaxing to see कि हम लोग जो MBBS BDS वाली रेस है उससे बाहर निकल के और प्रोग्राम्स को भी अब जो है टॉप पोजीशंस पे रख। या ऑब्वियसली Moving on to the next part, I would like to ask about the admission process of the allied health sciences programs. जैसे कि for the MBBS और BDS हमारे पास MD कैट होता है, तो इस तरह से allied health sciences के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, DPT हो गया, फार्मेसी हो गया, we have other BS, a lot of fields for the BS। तो इन सब के एडमिशन प्रोसेस का क्या होता है, किस तरह से टेस्ट होते हैं? इज देयर एनी स्पेसिफिक टेस्ट, एंट्री टेस्ट? Is there any specific merit requirement for that? And if there is a test, how competitive that test is? Afin, can you please answer to this question? What is the admission process of allied health sciences program? Okay, this is a very, kind of technical question. If I talk about in specific DPT, तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी बेसिकली रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे एमबीबीएस पीडीएस के लिए एमडी कैट इज अ कंपल्शन। तो डीपीटी के लिए अब आपको बहुत सारी अवाम मिलेगी जो ये बात आपसे बहस करेगी, डीपीटी के लिए एमडी कैट जरूरी है? नहीं। एचईसी की तरफ से और पीएमडीसी आप कुछ भी उठा लो, तो डीपीटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एमडी कैट जैसा एक कॉम्पिटेटिव एक टफ एग्जाम देना नेसेसरी नहीं है। जहां तक बात है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरी यूनिवर्सिटी डिफर्स ऑन इट्स ओन, बट द अ जनरल आउटलाइन कि जो आपका एप्लीकेंट होना चाहिए, चाहे एफएससी में चाहे ए लेवल्स में, आपके पास 60% या उसके इक्विवेलेंट जो भी आपकी डिग्री है। इवन फॉर ओवरसीज आपकी इक्विवेलेंसी बनती है पाकिस्तानी सिस्टम में, तो आपके 60% होना चाहिए। एंड देयर इज अ मेजर ड्रॉबैक फ्रॉम ए लेवल स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बायो का पेपर आपने मेन सीरीज में छोड़ दिया, आप नेक्स्ट सीरीज में दे दोगे, तो आपको कंपल्शन है कि आपके सब्जेक्ट्स में बायोलॉजी हो, विच इज वेरी नेसेसरी। बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स आपके पास है नहीं है, बिकॉज इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के पास तो एक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स होता है, बट ए लेवल्स के पास तो यू हैव देयर ओन चॉइसेस। तो सबसे पहले यू शुड हैव बायोलॉजी, यू शुड हैव केमिस्ट्री इन योर सब्जेक्ट्स एंड क्लियर विद अ गुड ग्रेड विच इज इक्वलेंट टू 60% ऑफ कराची बोर्ड और पाकिस्तानी बेसिकली सिस्टम। और इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बेसिकली सेंट्रलाइज कोई टेस्ट नहीं है, एवरी यूनिवर्सिटी हैज इट्स ओन टेस्ट। Talking about now what is tested in those admission
टेस्ट एंड एंट्री टेस्ट, हर यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट है। और बेसिकली जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं दोज आर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जनरल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, इट इज ऑल एमसीक्यूज बेस्ड। कोई भी आपको जो है किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट कोई आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, सब ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन आपको उसमें जो है ना, मतलब it is not just related to what you study, basically they test your core concepts। एक मैंने अपने एडमिशन टाइम पे सुना था कि जी सिर्फ आप एमडी कैट का सिलेबस पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा, नहीं। वो आपके बचपन से लेके अभी तक जो कोर कॉन्सेप्ट है, आपने कितना समझा, कितना पढ़ा, आपसे सब पूछते हैं। मैंने पर्सनली 3 मेडिकल यूनिवर्सिटीज का टेस्ट दिया था। मैंने जाउदीन का दिया, लियाकत नेशनल का दिया और बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी का दिया। तो इन तीनों में मुझे एक चीज सिमिलर लगी, विच वाज द टेस्टिंग ऑफ योर कोर कॉन्सेप्ट्स। आपने बचपन से जो पढ़ा आपने उसको भुला नहीं देना। अगर जैसे मैं डीपीटी की साइड पे थी तो मैंने अपना फोकस रखा मसल्स पे, बोन्स पे, चाहे क्लास 4 से लेके इंटर तक जितना पढ़ा, जो आया स्केलेटल सिस्टम तो ये सब आया। तो उसके अलावा आफ्टर क्लियरिंग योर एंट्रेंस टेस्ट देयर इज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड इंटरव्यू। अच्छा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपका इंटरव्यू क्लियरेंस। वो सिर्फ आपको इस बेस पे नहीं एडमिशन देते कि जी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा पढ़ा। इंटरव्यू क्लियरेंस रिक्वायर्स यू प्रॉपर ड्रेसिंग, प्रॉपर कॉन्फिडेंस। आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन किसी बात को झूठ नहीं बोल सकते। आपको जो बोलना है बिल्कुल सच बोलना है, अब कॉन्फिडेंट रह के, बिकॉज ये ना हो कि आपने एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने कुछ और बोला, फिर बाकी बाद में आपने फर्दर अपना आंसर चेंज कर दिया, तो टीचर्स ना उस चीज को पकड़ लेते हैं। तो very it is not as competitive as MBBS BDS, but yes, every university has its own merit list। एलिजिबल होने के लिए आपको बस वही 60% चाहिए और टेस्ट क्लियर करना है, which again consists of all the main subjects which are physics, chemistry, biology, English, जनरल एमसीक्यूज, बेसिकली जनरल नॉलेज ऑफ पाकिस्तान, और कभी कभार मैथ्स भी बहुत सारी। अच्छा, मैथ्स में आप ये मत समझिए कि मेडिकल है तो मैथ्स का क्या ताल्लुक, तो ऐसे तो मेडिकल से जनरल एमसीक्यूज का भी ताल्लुक नहीं है। बेसिकली दे टेस्ट योर आईक्यू, बिकॉज आपको आता होगा, यू केपेबल इनफ, तभी आप आगे जाके लोगों को समझ सकते हो। तो these are the main requirements and main eligibility criteria of DPT specifically. Thank you. So just like Afreen mentioned, it's not centralized test for the DPT, PharmD, and other allied health sciences programs. You have different universities offering this, जिसमें government universities भी आ जाती हैं, government sector की, और private sector की भी different universities आ जाती हैं। यानी you have multiple choices. If you are unable to do your best in one exam, you have the chance that कि आपके other university के exam में जब आप appear हो रहे हो तो वहां आप अपना best दे। It's not like a do or die वाली situation नहीं है। Different universities हैं और उनकी भी जो है ranking हुई हुई है, private university, government university, but सारी universities जो हैं अलग अलग test लेती हैं। After the test for the MBBS and BDS, we do not have interview for the government universities. But for the allied health sciences programs, we have interview thing for the universities. And if you pass the test, you also have to pass the interview to get into this field. Okay. Now moving on to the next question about the subjects. Just like I'm doing MBBS and I have 3 major subjects: anatomy, physiology, and biochemistry. So what are the major 4 subjects of the allied health sciences program specifically for the DPT and pharmacy? Like कौन से subjects ऐसे होते हैं जो कि आप majorly पढ़ रहे होते हैं, या फिर कौन से subject ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ी कम weightage होती है, minor subjects होते हैं? I would like Bisma to answer this regarding the subjects of pharmacy. सो रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ फार्मेसी, हमारे पास जो है हमारे मेन सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने हैं यहाँ पे आके फार्मेसी के अंदर, जिसमें आपने अपनी ग्रिप रखनी है, वो ये है कि आपको सबसे पहले तो बायोकेमिस्ट्री आपकी पूरी पक्की होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एमबीबीएस के बच्चे भी रो ही रहे होते हैं कि बायोकेमिस्ट्री जो है ना आप लोग हमसे हो नहीं रही है, हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा। तो आपकी बायोकेमिस्ट्री पक्की होगी, आपको अपनी साइकिल्स का पता होगा, चीज़ों का पता होगा, तो फिर आप डायग्नोज भी कर सकते हो और फिर ड्रग्स भी दे सकते हो ऑब्वियसली। और फिजियोलॉजी, ऑब्वियसली फिजियोलॉजी आपको फंक्शंस पता होंगे और आपको डिजीज पता होंगी, तो आप चीज़ें कर सकते हैं। और मेन थिंग हमारी फार्मेसी में ये है कि हमें
प्रैक्टिस होनी चाहिए चीज़ें करने की, लाइक आपके पास कोई टेक्निक है, कुछ है जिसके लिए मतलब हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मेसी एंड अदर थिंग्स भी होती हैं। तो ये है कि हमारे मेन सब्जेक्ट जो आपको अभी जाते ही जिस पे बेसिस बनानी है, बेसिक्स पे जो है ना बेस बनानी है, तो वो ये है कि बायोकेमिस्ट्री की बेस बनानी है आपने, और आप अपने फिजियो की बेस बनानी है, और आपको हैंडलिंग करनी आनी चाहिए अपनी टूल्स की, और अपनी लैब में वक्त गुजारना है ठीक ठाक। तो थैंक यू। Applying for the university, मेरा एक मेजर जो ड्रॉबैक था कि आई वॉन्ट गो फॉर द फार्मेसी बिकॉज आई कैन नॉट डू केमिस्ट्री। इसमें जो या फॉर्मूलाज होते हैं, ये होते हैं, तो आई वाज लाइक दिस इज नॉट माय थिंग, आई कैन नॉट डू केमिस्ट्री। इट्स नॉट अबाउट ओनली फॉर्मूलाज कि आप सिर्फ फॉर्मूला ही कर रहे हो, लेकिन ये है कि चीज़ें जो है ना बहुत डीप चली जाती हैं, चीज़ें बहुत जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, फिर वो समझते समझते आपका दिमाग नहीं रहता, तो बस फिर यही। So just like Bisma said, if you want to go for the pharmacy, you must have a good grip on chemistry and या if you don't have, don't go for the pharmacy. And can you please या let us know about the core subjects of DPT? Like what are the subjects and programs that you study in DPT? Well, talking about the core subjects for the DPT, सब्जेक्ट्स में कोर सब्जेक्ट बात की जाए, मतलब डीपीटी जैसे सेमेस्टर सिस्टम है, 10 सेमेस्टर्स होते हैं 5 डिग्री प्रोग्राम में। ईच ईयर हैज 2 सेमेस्टर्स इन ईच ईयर। सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो जो मेन और मेजर सब्जेक्ट्स हमारे फर्स्ट ईयर में जैसे होते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड काइनेसोलॉजी। कमिंग अबाउट सेकेंड ईयर से आपका एनाटॉमी सेम, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। आगे भी सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें फार्माकोलॉजी, मस्कुलोस्केलेटन, ये सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मेजर होते हैं। बाकी माइनर सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो माइनर इतना स्पेसिफिक नहीं होते, उसमें आप कर लेते हैं, माइनर में पास हो जाते हैं। बाकी मेन सब्जेक्ट्स में जो फोकस होता है वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फर्स्ट ईयर में जो है काइनेसोलॉजी मतलब आपके ज्यादा उसमें होता है एक्सरसाइज थेरेपी, फिजिकल थेरेपी वगैरह में, ये आपका ज्यादा प्रैक्टिस इसमें काम आता है। काइनेसोलॉजी मतलब मेन सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर से। और सेकेंड ईयर से तो आपका बायोकेमिस्ट्री सेम एज लाइक एमबीबीएस सब्जेक्ट्स। बाकी करियर प्रोस्पेक्ट से बात की जाए तो फिजियोथेरेपी के मतलब करियर के तो बहुत ऑप्शन है। जैसे 5 ईयर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप हाउस जॉब करते हैं, हाउस जॉब के बाद आप बहुत सारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन करते हैं, जैसे कि न्यूरोथेरेपी, कार्डियोथेरेपी, मस्कुलोथेरेपी। फिजियोथेरेपी की तो मतलब ज्यादा स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अहमियत है। जैसे अभी मैंने रियलाइज किया, रिसेंट हमारे यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स वीक हुआ था, तो स्पोर्ट्स का उसमें बहुत मतलब फिजियोथेरेपी का बहुत ज्यादा ही रोल था। मैंने अभी रियलाइज किया, जिससे हमारी जो फाइनल ईयर की जो सीनियर्स थी उन्होंने मतलब स्पोर्ट्स में जो वो फिजियो कैंप रखा था, तो मतलब स्पोर्ट्स में तो पूरा वीक था। जैसे भी किसी को कोई स्पैसम वगैरह हो जाता, सर्वाइकल स्प्रेन्स आ जाते थे, एंकल स्प्रेन्स आ जाते, तो उसी टाइम ही रेस्क्यू टीम हमारी पहुंच जाती थी। तो मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली थी हमारी सीनियर से फिजियोथेरेपी की। So like काइनेसोलॉजी जो है वो एक मेजर सब्जेक्ट है जो कि आप डीपीटी में पढ़ रहे होते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल दी अदर। एंड जस्ट लाइक मुस्कान सेड के माइनर सब्जेक्ट तो बिल्कुल एंड में पढ़ने के होते हैं, आप शॉर्ट बुक से माइनर सब्जेक्ट कवर कर लें, यू विल गेट पास। इट इज नॉट लाइक दैट, Yeah. यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग फ्रॉम डे वन, डू नॉट गो ऑन थिंग। Okay, now that we have discussed the eligibility criteria, admission process, and the course outline, I would like to move on one thing जो कि हम बहुत commonly अपनी सराउंडिंग में सुन रहे होते हैं, like it's so much के mostly लोग भी बोल रहे होते हैं कि allied health sciences programs are considered as a fallback option. Is that true or not? So I would like Afeen to answer this question कि वाकई में allied health sciences के programs fallback हैं या फिर नहीं? ओके, टॉकिंग अबाउट द फॉल बैक है या नहीं, देखें एक सोसाइटी होती है, तो एक सोसाइटी इज बिल्ट बाय डिफरेंट लेवल्स। अगर हर कोई, जैसे हमारी जनरेशन में अब जाके ये स्टीरियोटिपिकल जो एक ट्रेंड था, जनरेशनल ट्रेंड कि एमबीबीएस बीडीएस नहीं तो कुछ नहीं, which has now broken. Now this chain has been broken, and you know the versatile options of allied health sciences और उनकी मतलब हमें ज्यादा नॉलेज देना, ये सब करना, जिससे हमें, मैं ये बात बोलूंगी कि नहीं, ये हमारे लिए फॉल बैक नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग नीड्स अ सपोर्ट टू वर्क विद।
जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट माई फील्ड अ फिजिकल थेरेपिस्ट, देखिए हर चीज़ का इलाज दवाई से नहीं है। अगर मेरे पास एक पेशेंट आया, अगर फॉर एग्जांपल एक जनरल फिजिशियन के पास एक पेशेंट आया, उसने कहा कि मुझे घुटने में दर्द है, मुझे, तो जनरल फिजिशियन क्या करेगा, दो सुबह की, दो शाम की, दो रात की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके घर भेज दो। बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट, मैं उसको बोलूंगी मेरे पास आए, मैं आपको एक एक टेम्परेरी नहीं, मैं कोशिश करूंगी मैं परमानेंट। देखिए पेन किलर्स हमारे पास एक प्रॉपर इलाज नहीं है, विच इज जस्ट टेम्पररी। तो बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट आई हैव द द एबिलिटी के, जैसे इंसान को एक जिंदगी अल्लाह पाक ने दी है, तो दूसरी जिंदगी चलाना हमारे हाथ में है। वो इसलिए बिकॉज ये एक कनेक्शन है, दिस इज अ कनेक्शन। ऐसे अगर मैं फार्मेसी की बात करूं तो नहीं, फॉल बैक नहीं है, बिकॉज वंस अगेन जो मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब की जाती हैं, दे आर स्टडीड एट बैकग्राउंड फ्रॉम समवन, कोई पढ़ता है उनको, तो हमें आगे आगे जाके पता चलता है कि अच्छा, जैसे हमारी बहुत ज्यादा एक कॉमन चीज है, एक मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो ठक से हमारे पास दूसरा उसका ऑल्टरनेट होता है। वो क्यों होता है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फार्मासिस्ट जो एक्चुअली पढ़ते हैं, इनको पता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एक ही चीज पे मतलब फोकस रहो, आपके पास वो नहीं है ऑल्टरनेटिव्स। सो आई डू नॉट थिंक दैट अलाइड हेल्थ साइंसेज इज a fallback. Talking about apart from DPT and PharmD, अगर हम BS कार्डियक परफ्यूजन की बात करें, हम प्रोस्थेटिक्स ऑर्थोटिक्स की बात करें, मेडिकल में डेंटिस्ट्री में जो आपके सर्जन्स होते हैं, जो नॉर्मल फिजिशियन जनरल सर्जन्स हैं, तो प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स भी देखें। अब हर चीज तो हम या कोई मतलब डॉक्टर्स नहीं पढ़ रहे ना, देर इज अ बैचलर प्रोग्राम फॉर स्पेसिफिकली फॉर BS prosthetics and orthotics, which shows its importance in our lives. It reflects how important it is. So, in my opinion, everything is important, and taking part in any allied health science program, आपको देखिए नुकसान किसी चीज का नहीं है, फायदा ही फायदा है। तो आई वुड वांट माय यंगर स्टूडेंट्स, माय यंगर जनरेशनल फेलोज, के आप सिर्फ इस MBBS PDS से निकल के आप दूसरी फील्ड्स भी एक्सप्लोर करें, तो आपको वो सब मिलेगा जो हमें इस एज तक नहीं पता होता, until you get into that field. सो मेरे लिए हिसाब से दिस इज नॉट अ फॉल बैक, दिस इज अ वेरी गुड एजुकेशनल प्रमोटेंस इन आवर कंट्री, कि हमारे मुल्क में भी इतने वास्ट ऑप्शंस हैं। हर चीज के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह आपके अपने मुल्क में है। एब्सोल्युटली आफरीन, आपने इसको बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है कि लाइट हेल्थ साइंसेज के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, दे आर नॉट अ फॉल बैक ऑप्शन। ऑफ कोर्स देयर इज अ कम्युनिटी। आप एक चीज दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर कोई MBBS कर रहा है, समवन इज डूइंग BDS, समवन इज डूइंग DPT, तो हम अकेले जो है पूरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को नहीं चला सकते। वी ऑल नीड ईच अदर एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ टू वर्क इन द सोसाइटी, टू हेल्प पीपल, टू वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी। और इन द एंड हमारा मकसद सबका ये है कि हम इंसानियत की खिदमत कर सकें। ह्यूमैनिटी जो है वो हमारी एफर्ट से उसको उसके ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़े। तो allied health sciences is a very good option apart from the MBBS, BDS, and all the other fields. They are not included into the medical healthcare, but allied health sciences is very good option, and we should consider that. One more myth that we often hear about this, I want the DPT speakers to answer this, that according to the PMDC, अब जो आप जब DPT के 5 years complete कर लेते हैं, तो उसके बाद you are eligible for the doctor prefix, and in this society we are only running over this doctor prefix and white coat until you realize कि वो white coat जब रोज धोना पड़ता है, that is so difficult. But we are running for that. उसका जो glam है, तो we are running for this only. So I would like के are the physiotherapists really doctors? इसके बारे में क्या ख्याल है कि जो डॉक्टर की प्रीफिक्स है वो फिजियोथेरेपी के ऑक्यूपेशन को कुछ ज्यादा अच्छा बना देती है, या कोई उसमें विद स्टैंड हो जाता है फॉर विद दिस डॉक्टर प्रीफिक्स? आई वुड लाइक मुस्कान टू आंसर दिस, कि किस तरह से इसको लिया जा सकता है। ओके, सो यू आर राइट, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही ठीक है कि प्रीफिक्स यूज करना है कि नहीं करते, क्योंकि हम हर जगह बहुत ज्यादा क्रिटिसाइजेशन सुनते हैं अलाइड हेल्थ साइंसेस के बारे में कि ये फार्मेसी है, तो ये मतलब दवाइयां बनाते हैं, ये डॉक्टर्स नहीं होते। और जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं ये मालशी होते हैं, ये भी डॉक्टर्स यूज नहीं कर सकते। इनफैक्ट नो,
मतलब हमारा 5 डिग्री प्रोग्राम है लाइक एमबीबीएस। हम ग्रेजुएट होने के बाद हमारा भी हाउस जॉब होता है। हम हाउस जॉब करने के बाद उस फील्ड स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करते हैं। तो लाजमी डॉक्टर यूज करना तो कॉमन है। मतलब एक स्टूडेंट है जो एप्रन पहनता है, स्टेथोस्कोप कैरी करता है और पेशेंट्स को ट्रीट भी करता है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो डॉक्टर प्रीफिक्स यूज करना तो मतलब कॉमन ही है। और पीएमडीसी और एचईसी ने भी अलाउ किया है कि फिजियोथेरेपिस्ट और अलाइड हेल्थ साइंस के स्टूडेंट्स जो है वो प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। I think since you are also a DBD student, we want to hear your reviews about this too. देखें, द वर्ड डॉक्टर, यस, हम यूज कर सकते हैं क्योंकि एचईसी ने भी, पीएमडीसी ने भी हमें अलाउ किया है। बिकॉज टॉकिंग अबाउट फिजिकल थेरेपिस्ट, वी स्टडी एवरी मेडिकल सब्जेक्ट जो नॉर्मल एमबीबीएस वाले बच्चे या और जिनको हमारी सोसाइटी में टिपिकली स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस वालों को डॉक्टर बोला जाता है। तो अगर जो वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, हम भी वही पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे पास एमबीबीएस वालों से ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं क्योंकि हमने रिहैबिलिटेशन पे काम करना है। हमने बॉडी को उतना ही डिटेल में पढ़ना है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स और पॉइंट्स में हमने ज्यादा डीप डिटेल में पढ़ना है। हमारा काम बेशक दवाइयां देना नहीं होता, बट वी वर्क ऑन दी रिहैबिलिटेशन, दी मोबिलिटी, रिड्यूस मोबिलिटी। एक हम बोलेंगे जैसे जो है ना, एक पेशेंट है बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही, रिड्यूस मूवमेंट है, तो हमने पढ़ना है कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल हाथ का जॉइंट है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अब आपने उसको चलाना है। आप छोड़ नहीं सकते, आपके पेशेंट के हाथ में दर्द है, आप उसको सिर्फ ये नहीं कह सकते आपके हाथ में दर्द है तो है। You have to work on its mobility, you have to work on its posture. So the word doctor, it is applicable over physical therapists as well. Apart from the word doctor, हम बहुत सारे बच्चों को हमारी अपनी फील्ड में ये लगता है, बेसिकली हमें बहुत सुनने को मिलता है कि जी मालिश, दर्द हो रहा है, फिजिकल थेरेपिस्ट को बुला लो, वो दर्द हो रहा है दबा देगा। तो हम दबाते नहीं हैं जाके, वी परफॉर्म एक्सरसाइजेस, वी परफॉर्म रिहैबिलिटेशन, तो जो एक डॉक्टर का काम है। सो यस। So, like according to PMDC and HEC, जितने भी higher education है, they have said that doctor prefix is eligible for the DPT student. Apart from this, are the physiotherapists doctors or not? इसकी डिबेट में अगर हम ना भी जाएं तो फिजियोथेरेपी इज अ डिफरेंट फील्ड और उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है अपनी जगह। इवन इफ यू डू नॉट यूज द वर्ड डॉक्टर विद दैट, इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, जो कि आप वर्ड डॉक्टर के होने या ना होने से कम नहीं हो जाएगी। Thank you, Afeen and Muskan. You gave a wonderful insight regarding this. Moving on to the next part, if we talk about the career opportunities in allied health sciences programs, तो जैसे कि एज बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट हमें थर्ड ईयर में जाके अपना मेडिकल एक्सपोजर मिल जाता है, हमारे वार्ड्स होते हैं और हम हॉस्पिटल्स वगैरह जाते हैं। तो व्हाट इज इन अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम्स में ये किस तरह से वर्क होता है कि यू गेट द चांस टू विजिट हॉस्पिटल्स, you get the clinical exposure or not? Bisma, can you please answer this के किस तरह से allied health sciences के programs में आपको clinical exposure मिलता है? हमारी पाकिस्तान में जो है एलाइड साइंसेज के प्रोग्राम्स में फार्मेसी जो है सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड फील्ड मानी जाती है कि यहाँ पे जो है जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सारी बातें जो है पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। आपको हर बंदा आपको डिमोटिवेट करता हुआ ही दिखेगा कि आप नहीं करो वहाँ पे जॉब्स नहीं है। बट द थिंग इज हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल रही होती हैं और हमारा एक्सपोजर भी बहुत क्लिनिक्स में होता है कि अभी हमारी रिसेंटली मेडिकल कैंप्स में लेके जाया जा रहा होता है बच्चों को, और फर्स्ट ईयर के उससे ही लेके जाया जा रहा होता है। लेकिन माय सीनियर टोल्ड मी कि सबसे ज़्यादा जो बेटर टाइम है आपको इंटर्नशिप करने का और चीज़ें करने का, तो वो ये है क्या आप अपने 4th ईयर के बाद करो। फार्मेसी में 4th ईयर के बाद जो है आपने इंटर्नशिप करनी है, क्योंकि आपको तब सब कुछ पता होगा कि जो है आपने तमाम हैंडलिंग्स करना सीख ली होंगी, तमाम ऑपरेटर्स की एंड ऑल दिस स्टफ। तो आप जाके जो है कहीं पे भी क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो आपको वहाँ पे एम्बेरसमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि 3rd ईयर में ही जो है इंटर्नशिप्स कर लेते हैं, तो उसमें बेस्ट टाइम जो होता है वो आपका 4th ईयर के बाद, आपका 5th ईयर शुरू होने वाला होता है, तब आप इंटर्नशिप करो। आपको सब पता है, आपको किसी से कुछ ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अपॉर्चुनिटी जो है हमें अपनी अवेल तब करनी चाहिए जब हमारा टाइम बेटर हो। तो ये वाली जो चीज़ है वो हमें 4th ईयर के बाद करनी चाहिए।
Afin, can you please let us know about the DPT? What is the clinical exposure in the DPT program? क्लिनिकल एक्सपोजर जस्ट लाइक नॉर्मल मेडिकल स्टूडेंट्स, हमें भी जैसे मी बीइंग अ पार्ट ऑफ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, तो हमारे में कंपल्शन है थर्ड ईयर के बाद आपको वो क्लिनिकल रोटेशंस देंगे, आपको उन क्लिनिकल रोटेशंस में जाना है जिनकी अटेंडेंस मैंडेटरी है, पेशेंट हैंडलिंग आनी चाहिए। देखिए, इफ़ यू लुक ओवर अराउंड योर सेल्व्स, देयर इज नो हॉस्पिटल विदाउट अ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल थेरेपी। तो बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट आई फील वेरी प्रिविलेज्ड कि मेरे पास, और मतलब मैं इतनी इम्पोर्टेंट हूँ सोसाइटी के लिए। कोई भी स्पेसिफिकली हॉस्पिटल्स जो होते हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट द लोकेलिटी एरिया हॉस्पिटल्स, विदाउट रिहैबिलिटेशन नहीं होते। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक अलग रिहैबिलिटेशन सेंटर, कोई भी आप देख लें रिहैबिलिटेशन सेंटर है, तो हमारे पास क्लिनिकल एक्सपोजर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है और पेशेंट हैंडलिंग है। नाउ देर इज़ अ प्लेटफॉर्म, पीएलएसपी, पाकिस्तान लाइफ सेविंग प्रोग्राम। अब मैंने जैसे जब एडमिशन लिया तो मुझे ये सुनने को मिला कि तुम लोग से फिजिकल थेरेपिस्ट हो एंड यू गाइस विल स्टिक टुवर्ड्स what only physical therapy is, but that PLSP is teaching you about all of that, emergency measures or sab kuch. So if me being a physical therapy student, I have enrolled myself in PLSP program, so I was encouraged। जो ऐसे जो स्मॉल वर्कशॉप्स होती हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, तो दे अलाउ यू, दे बेसिकली वांट यू टू बी देयर। तो क्लिनिकल एक्सपोजर भी है और वैसे सोशल एक्सपोजर भी है, तो प्रॉपर एक यू आर ट्रेन्ड टू हैंडल अल जाती। hands on practice is very important and encouraged in our field। So we have discussed the clinical exposure while being the students. Now moving on to next part, like we talk about the career and future opportunities. So what is the scope of allied health sciences programs in Pakistan and international? Since it's not a fallback option and it has its own importance, so what are the career opportunities or paths? कि जब आप एक DPT कि 5 साल की डिग्री पूरी करके जाते हैं या फिर फार्मेसी की आप 5 साल की डिग्री पूरी करके जाते हैं, तो आपके लिए कहाँ पे प्लेसमेंट ऑप्शंस होते हैं, कौन सी जॉब्स आपके लिए अवेलेबल होती हैं? Vishwan, can you answer this, that what are the job opportunities and placement opportunities for the allied health sciences programs? जॉब अपॉर्चुनिटीज इन फार्मेसी इज लाइक आपके पास जो है 3 से 4 ऑप्शन होते हैं। एक तो ये होता है कि आप अपना प्रोफेशन जो है इन क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स आप जो है परस्यू करते हो, और आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप इंडस्ट्री साइड जाते हो, आप फॉर्मुलेशंस की साइड जाते हो, ना कि पेशेंट हेल्थ केयर वहाँ पे भी हो रही होती है, लेकिन वहाँ पे फॉर्मुलेशन हो रही होती है ड्रग की। सो आपके पास सेकंड ऑप्शन इंडस्ट्री होता है, एंड थर्ड ऑप्शन आपके पास ऑब्वियसली एकेडमिक्स होता है। वहाँ पे आप टीचिंग के प्रोफेशन पे जो है जा सकते हैं, एंड आपके पास फोर्थ ऑप्शन होता है आपका रिसर्च, लाइक आप रिसर्च बेस पे भी जा सकते हैं। जैसे आप कोई नई बीमारी आ रही है, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना वायरस एंड मंकी पॉक्स का बहुत चल रहा था, तो वहाँ पे उसकी वैक्सीन के लिए आप रिसर्च बेस चीज़ें जो है कर सकते हैं। सो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं टोटल एलाइड हेल्थ प्रोग्राम्स में, इन फार्मेसी में। सो ये आप कर सकते It's not like that कि आप एक जगह पे स्टिक हैं। हो हाँ, सकते हैं। एक जगह पे आप स्टिक हो सकते हैं जी। Okay, okay. So we have discussed about all the details that we need to know about the allied health sciences programs, and we are moving to conclude our podcast. But before that, I would like the speakers to give a piece of advice to the people who are planning to pursue these fields. Like, if someone wants to do allied health sciences program, and if someone wants to pursue a degree in DPT and PharmD, what is the advice you want to give to your juniors? So आप समझते हैं कि आपको अपने टाइम में पता होनी चाहिए थी, एंड यू वांट कि आप दूसरों को बताएं, कि ताकि कोई ऐसी चीज जो कि आपने मिस करी हो तो वो दूसरे ना मिस करें। आफीन, प्लीज स्टार्ट, लाइक लेट अस नो व्हाट डू यू वांट टू टेल द जूनियर्स। देखिए, टॉकिंग अबाउट माय एडवाइस टू द जूनियर्स इज कि दुनिया एमबीबीएस बीडीएस पे ख़त्म नहीं हो जाती।
देखिए, मैं जितनी ऐसे लगेगा कि मैं बैठ के इतनी बातें कर रही हूँ, तो मैंने भी ये एक दौर गुजारा हुआ है. एमडी कैट फेज इज नॉट इजी. और व्हेन आई वाज इन माय एडमिशन फेज, आई हैड नो वन टू एक्चुअली गाइड मी एंड टेल मी, अपार्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स जो मेरी ही एज के मेरे साथ ही स्ट्रगल कर रहे थे. आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मुझे एमडी कैट के बाद मेरा गंदा रिजल्ट, और मुझे पता था कि आई वॉज नॉट एबल टू स्कोर वेल, तो आई हैड अ फ्रेंड जो खुद, जिसका कहना था कि या एमबीबीएस या कुछ नहीं. और जब मैंने उसे बताया कि मैंने डीपीटी करना है, या मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे करना चाहिए, बेसिकली माय मदर फोर्स्ड मी अलॉट, शी इनकरेज्ड मी अलॉट कि तुम करो डीपीटी, ये करो. तो माय फ्रेंड्स हेल्प मी अलॉट, एक्सेप्ट फ्रॉम माय फ्रेंड्स मेड की टीम, मेड प्री मेड. I would, want them to, I would like to include them in my things, कि मैंने अपनी एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन, उनकी जो शॉर्ट समरी गाइड्स होती हैं उनसे की. मेरे कुछ सीनियर्स, मेरी कोई फ्रेंड्स थी जो मेड एंगल में थी, जिन्होंने मुझे एज अ मेड एंगल इंटर्न मुझे गाइड किया, मुझे बताया. तो मैं अपने फेलो जूनियर्स को यही कहना चाहूंगी कि दुनिया चाहे जो बोलती है, दुनिया का काम है बोलना. लोग बोलेंगे तो आप सिर्फ एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें. और अलाइड हेल्थ प्रोग्राम्स में मेरा ख्याल है कि आपको एडमिशन लेना चाहिए है. एंड दिस इज अ होल लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट. अगर आपने सिर्फ पढ़ के डिग्री लगानी है तो आप और बहुत सारी डिग्रीज है करने के लिए. दिस इज अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट. प्लीज डिग्री करके इसको जाया ना करें, इसको यूज करें. एंड आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज फिजिकल थेरेपिस्ट को अल्लाह पाक ने इतनी सलाहियत दी है कि अगर आपको लगे कि आप देखिए, जान, जिंदगी, सांसें कितनी हैं, ये सब अल्लाह पाक के हाथ में है. लेकिन इतनी अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी है कि आप पेशेंट को ना आप चलाना सिखा सकते. केस, रियल लाइफ केस, पार्किंसंस डिजीज उनको हुई, और साथ में उनके न्यूरोलॉजिकल इश्यूज और बहुत कुछ होना शुरू हो गए. तो डॉक्टर्स ने अपेरेंटली हमारी जबान जो कहते हैं जवाब दे दिया था. फिर हमने रिहैबिलिटेशन की तरफ देखा उनको, हमने फिजिकल थेरेपी करवाना शुरू की. तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना है कि वो सपोर्ट के साथ ही सही लेकिन चल लेते हैं. तो एवरी subject, every degree has its importance. So I would love to see my juniors, taking part in all of these admissions. Muskan, any advice you want to give to your juniors? एडवाइस मेरी यही है कि जैसे जोहान सॉरी आफीन आफीन ने कहा कि दुनिया एमबीबीएस पर खत्म नहीं होती. ऑफ कोर्स दुनिया एमबीबीएस पर खत्म नहीं हो जाती, बहुत ज्यादा आगे भी करियर ऑप्शंस हैं और आप उसमें भी एक्सेल कर सकते हैं. डीपीडी आप चूज करो, लाजमी करो मैं तो कहती हूँ, क्योंकि लाइक कोई ऐसी बुराई नहीं है डीपीडी चूज करने में या फार्मेसी चूज करने में. ये भी प्रोग्राम्स है, आप इसमें भी अगर आपकी हार्ड वर्क, डेडिकेशन और आपकी मेहनत हो तो आप इसमें भी एक्सेल कर सकते हैं. इसमें भी बहुत ज्यादा आगे करियर ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान में भी ऑफ कोर्स. इंटरनेशनल में तो आई मीन टू से कि अलाइड हेल्थ साइंसेस की ज्यादा ही इम्पोर्टेंस है यहाँ पाकिस्तान से एज कम्पेयर टू पाकिस्तान. वहां पर नर्सिंग को, फिजियोथेरेपिस्ट को, फार्मेसी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है एमबीबीएस स्टूडेंट से भी. तो मेरी एडवाइस यही है कि आप चूज करो. अगर एमबीबीएस में हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो आपके पास बैकअप ऑप्शंस हैं. अलाइड हेल्थ साइंस को आप लाजमी चूज करो. बाकी आपको मैं ये चाहूंगी कि आप अपडेटेड रहो. जो आपके मतलब जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वहां भी पार्टिसिपेट करो, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी आपकी बहुत ज्यादा काम आती हैं. वर्कशॉप्स अटेंड करो, सिंपोजियम अटेंड करो, आप यूनिवर्सिटी के इवेंट्स अटेंड करो, वो आपके मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं. Absolutely, जिंदगी MBBS BDS पे खत्म नहीं हो जाती है. There are a lot of other fields than that, and we should go for that because just like Muskan mentioned कि अगर हम internationally देखें तो बाहर as a physiotherapist और BS nursing, BS anesthesiology, BS radiology इन programs की बहुत worth है. और इवन के MBBS के बाद यू हैव टू डू अ पोस्ट ग्रेजुएट लाजमी. बिफोर दैट आप जो है इतने ज्यादा वर्थ नहीं होती है. But after doing a degree in BS or in allied health science program, you can definitely go to higher levels in Pakistan also as well as in international things. Bismillah, is there any advice you want to give as a pharmacy seniors to your juniors? Yes, I want to give advice to my juniors. Obviously, कोई भी डिग्री छोटी बड़ी नहीं होती. MBBS और BDS जो है
वो भी एक अच्छा प्रोफेशन है, बट किसी भी डिग्री को आप छोटा समझोगे, किसी को आप खुद जज करोगे तो दूसरा भी आपको जज करेगा। आप अगर किसी को जज कर रहे हो कि क्या कहते हैं कि इसके पास ये वाली डिग्री है, उसके पास वो वाली डिग्री है, तो ऑब्वियसली जब आपका पार्ट आएगा, जब आपके पास आएगी वो चीज़, तो फिर आप अपने आप को भी जज करोगे ऑब्वियसली। द थिंग इज कि आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, आप जो है एलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स में एनरोल करना चाहिए आपको, क्योंकि जो है वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो तो आप उसमें जो है ना आपको अपने कॉन्सेप्ट बेस्ड रखने होते हैं। यहाँ पे भी आपको एमबीबीएस में भी और बीडीएस में भी आपको जो है अपने कॉन्सेप्ट रखने होते हैं, और यहाँ पे भी आपको अपने कॉन्सेप्ट रखने होते हैं। आप अगर अच्छे कॉन्सेप्ट रखोगे, रट्टाफिकेशन नहीं करोगे, तो वहाँ यहाँ पे जो है आप बहुत अच्छा डायग्नोज कर सकते हो। एक फार्मासिस्ट का डायग्नोज और एक डॉक्टर का डायग्नोज जो है, फार्मासिस्ट का डायग्नोज जो है ना सबसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है एज कम्पेयर टू डॉक्टर्स, बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था और आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। और बहुत से ड्रॉबैक्स भी आते हैं इस डिग्री के बीच में, जैसे कि आप किसी पेपर में रह गए, फेल हो गए, या कुछ भी होता है, तो उसमें जो है आपको घबराना नहीं है। एज ऑलवेज सब कहते हैं घबराना नहीं है, तो आपको उसमें घबराना नहीं है। उस फेज से बाहर निकलने की करनी है, फौरन से बाहर निकलने की करनी है। बस हो गया, आप बाहर निकले। बस यही मेरी एडवाइस थी कि हर चीज़ को जो है सर पे हावी करके नहीं पढ़ना कि अब क्या होगा, अब तो दुनिया खत्म हो गई है। तो बस यही मेरी एडवाइस थी। थैंक यू। ऑफ कोर्स कि दुनिया तो खत्म नहीं हो जाती है किसी भी एक चीज पे, बिकॉज लाइफ डजंट एंड इफ वी फेल एन एग्जाम, और Yeah. लाइफ डजंट एंड जब हम कोई चीज चाह रहे हो और वो चीज ना हो, तो हम्म। बस हैव अ फेथ कि हमारे लिए इससे कुछ बहुत बेटर लिखा हुआ है। तो इफ जी। वी डू नॉट गेट एडमिशन इनटू एमबीबीएस एंड बीडीएस, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग एडमिशन इनटू एमबीबीएस और बीडीएस ओनली। इसके अपार्ट भी हमें देखना चाहिए कि जितने भी अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं, और भी बहुत सारी जो है फील्ड्स हैं, जो कि अब तो बहुत ज्यादा इंटरनेट पे भी इंफॉर्मेशन आ गई है, और सारी हमें जगहों से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कितना स्कोप है, कौन सी चीज कितनी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है। तो अकॉर्डिंगली हमें अपने फ्यूचर की प्लान करनी चाहिए। थैंक यू सो मच बिस्मा, मुस्कान एंड आफरीन फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। एंड फॉर आवर ऑडियंस आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग के डू नॉट इंक्लूड योर सेल्फ इन द रेस। Yeah. आप किसी दुनिया में किसी रेस का पार्ट नहीं है कि आप जहां पे मेजोरिटी जा रही चली है हवा, जहां वहीं पे सब चले जा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको अपनी इंटरेस्ट अलाइन करने हैं। इफ यू आर चूजिंग एनी यूनिवर्सिटी, एनी प्रोग्राम, जस्ट क्वेश्चन योरसेल्फ कि व्हाई आई वांट टू डू दिस। इंसान जब ये सवाल कर लेगा ना कि मैं ये क्यों करना चाहती हूँ, यू विल गेट योर आंसर ऑटोमेटिकली। किसी किसी को आके आपको गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना इंटरेस्ट अलाइन करें, बिकॉज चाहे वो एमबीबीएस के प्रोग्राम हो, चाहे वो बीडीएस का प्रोग्राम हो, चाहे वो लाइट हेल्थ साइंसेज का कोई भी प्रोग्राम हो, डीपीटी, फार्मडी एंड एनी बीएस प्रोग्राम, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, सबकी अपनी फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। और कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि आप अगर एमबीबीएस बीडीएस नहीं करते हैं, लाइट हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम्स में जाते हैं, तो आपके लिए फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। तो सिर्फ अपना इंटरेस्ट अलाइन करें, बिकॉज इफ यू आर इनटू अ स्टडी एंड यू हैव नो इंटरेस्ट इन दैट, तो यू विल डेफिनेटली यू आर नॉट एबल टू डू दिस। जहां पे इंटरेस्ट अलाइन कर रहे हैं, गेट इनटू दैट फील्ड। एंड वी हैव गॉट अमेजिंग स्पीकर्स टुडे, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह लाइट हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम का इम्पैक्ट है हमारी आज की सोसाइटी में, और किस तरह से फ्यूचर में हमें हेल्प कर सकता है। We hope that today's episode looking into allied health sciences discussed all the conversations you need to know about the allied health sciences programs. So if you know anyone who want to pursue the allied health sciences programs or apply for the DPT or PharmD, you have any friends in your circle or anyone who want to pursue this, so share this with your friends. And don't forget to subscribe for more enlightening discussion. Until next time, take care.